Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Innal hamdalillahi was-salatu was-salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. So what is it that we did last time? Does anyone remember? Because there was a break of a week in between and then it was the Eid holidays. So who would quickly review for us that what is it we did the last session? Assalamu alaikum, Ustaza. Can I tell? Yes, please go ahead. We did an ism, fully flexible, non-flexible, and partly flexible. Right. So actually the topic we discussed was the topic of flexibility. Right. So how many kinds of flexibilities we have? 3 kinds. We have 3 kinds of flexibilities, yes. So first of all, it's very easy, and that is the fully flexibilism. What is a fully flexibilism? What is an ism which is fully flexible? वो वाला इसम होता है जिसके ऊपर कसरा भी आ जाता है और तनवीन भी आ सकती है और कसरा भी आ सकता है, यानी वो तीनों हरकत आती हैं उस पे. नसब जर और रफा की डिफरेंट एंडिंग होती है. मेरी आवाज Ustaza, fully flexible are those words which end with oo, ah, and e, different endings. No one remembers. उस्ताद साहब, ये मैंने अभी बताया. आप मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आई. अच्छा, ये अभी आ रही है? अभी मैं बताऊं? अब आ रही है जी, बताइए प्लीज. अच्छा, फुली फ्लेक्सिबल वो वाले नाउन होते हैं जो तीनों किस्म की हरकत ले लेते हैं और कॉम्बिनेशन ले लेते हैं. बिल्कुल, ये वाली बात तो समझ में आ गई. नाउ आई एम आस्किंग फॉर एन एग्जांपल. जैसे मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन. जी बिल्कुल, शाबाश. मुस्लिमन, मुस्लिमिन. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फुली फ्लेक्सिबल इसम्स हमें पता चल गया. उसके बाद हमारे पास कौन से इसम्स हैं? नॉन फ्लेक्सिबल डिस्कस कर लेते हैं. हु विल टेल मी व्हाट आर नॉन फ्लेक्सिबल इसम्स? जी अस्सलाम वालेकुम. माहिरा. वालेकुम अस्सलाम. जी माहिरा, प्लीज बताइए. क्योंकि लास्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकी थी. नॉन फ्लेक्सिबल वो होते हैं जो अपने मतलब दे कैन, जैसे आपने बताया था स्टबर्न उनको कहा था. स्टबर्न इसम्स, राइट. जो कि सेम रहते हैं. जैसे एग्जांपल आपने दिया था मूसा, मिसाल के तौर पे, तो जिसकी एंडिंग साउंड आ हो, या फिर ये कि जो है कैटेगोरिकल नेगेशन वाली एक नहीं, कैटेगोरिकल नेगेशन इसमें नहीं था, बस मूसा हो सकता है. इसी तरह से लाइक द वर्ड्स व्हिच आर एंडिंग विद द अलिफ और अलिफ मकसूरा, एंड देन देयर आर सर्टेन isms like haza. So haza will remain the same in the 3 statuses, and then ulaika, allazina. So ये कुछ certain words थे will remain the same in rafa, nasab and jar. So ये दोनों तो they are quite easy. Then the main topic for the last class was what? The third kind, which was partly flexible. So सलमान अगर आज हमारे साथ हैं, सलमान आप बताइए what are partly flexible isms? एक में पेश होता है और 2 में ज़बर होता है. ठीक है. So क्या how will we what आप उनकी क्या बताएंगे identification? कि partly flexible isms are the isms which will not take
Tanween. Tanween, right. They will not take tanween and they will not take a kasra. They will not take a kasra. Okay? So this is something that we have to remember. Anyone is asking what is partly flexible ism? Partly flexible ism is the ism which is not going to take a tanween on it and it will not take a kasra. So in the jar status, how will we identify that it is in the jar status? jar status में क्या होगा अगर ये कसरा नहीं लेंगे तो? उस्ताजा आ जबर. ठीक है, बताइए रफा, एग्जाम्पल दीजिए मुझे. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Exactly, very good. So the names we can said that. Let us take the example of Ahmad. So it's going to be Ahmadu in the Rafa status. And Ustaza, partly flexible is taken as light. जी, जब हमने कह दिया ना ये तनवीन, you are right about it, but then we have already covered by saying that they will not take a tanween. And then the other way of saying it, like you have said, you are right about it, that they will be light. They will never be heavy, means they will never take a tanween. So it's going to be in the Rafa status Ahmadu, and in the Nasab status it's going to be Ahmada, and in the Jar status it will remain Ahmada. So in the Jar status it will take a fatha instead of a kasra. ये सबको समझ में आ गया था. अब आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं. If you have a question, then you can ask. और आप लोग जो है ना वो बुक से आप टॉपिक पर डिटेल में पढ़ लिया करें. अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. यू कैन आस्क ड्यूरिंग द लाइव सेशन और यू कैन इवन आस्क ऑन द ग्रुप. तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि वहीं पर उसको रिप्लाई कर लूँ. सो इफ़ देर आर नो क्वेश्चन देन वील इंशाल्लाह मूव ऑन विद द टॉपिक फॉर द डे. उस्तादा, अगर हमारे किसी नाउन के पीछे अल आ जाए तो वो पार्टली होगा या फुली होगा? Who asked this question? मिनाहिल. ठीक है मिनाहिल, मैं आपको पर्सनल मैसेज पर रिप्लाई कर दूंगी. ये थोड़ा सा फॉरवर्ड मतलब एडवांस बात है, अभी सबके सामने नहीं. ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह. They will be confused, but I with time everyone is going to cover this. चलिए, आज हमें we have to talk about the numbers today. Numbers में already we have. Okay, चलिए मैं ये वाली स्लाइड दिखा देती हूँ पहले. It's going to be easier with this slide. Then we'll come here. So numbers में already we have talked about it, that Arabic में how many categories we have when we talk about numbers. We have singular, then we have pair, and we have plural. And most of this stuff we have already done. There's just a little bit that we have to do today. Okay. So the singular, we know that the ending is going to be the ending sound, the rafa, nasab, and jar. We already know. And when it's going to be the feminine, it's going to be ending. Most of the time, it's going to end with a ta marbuta, the round ta, and then it will take a single damma, double damma, single fatha, double fatha, single kasra, or double kasra. So singular we have already covered in detail. Then when it is the pair and the plural, we said that it's going to be the ending combination. So who is quickly telling me about what are the ending combination of pair in masculine? May I? Ani, Ida, may I? Any one of you can do it. Ani, Aini, Una, Ina, Atun, Atin. No, the question was, what is the combination for masculine pair? Ani, Aini, Una, Ina. Masculine pair is only Ani and Aini. Okay, listen to the question carefully and then answer. So when it's masculine pair, it's just going to be Ani and Aini. What is going to be the ending combination for feminine pair? Tani, Taini. Yes, it's going to be the same, Ani and Aini. Very good. Then what is going to be the ending combination for plural pair, masculine?
Atun, Una, atin. ina. No, look at the pointer. Can you see the pointer on the screen? The pointer is at the masculine. So masculine ke kya hai? Una and ina. Yes. Feminine plural ki what is the ending combination? Feminine Atun, ending combination for plural. Yes. Atun and atin. ठीक है, अगर अभी भी किसी को अच्छी तरह से याद नहीं हुआ तो प्लीज इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, seems good. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास नाउ. सो देयर what is something, okay, this is something that ismul jama. Some words, although they seem singular when we look at the words, what are these words? These are three words. Let them look at them here. So what these three words, we have to remember them. What are the words? Qaum, qarn and nas. Okay, so when you look at this word qaum, qaum seems to be a singular word, isn't it? Plural will be aqwam. But when we are treating these words, we call these words, we have a name for them. They are called the ism jama. So ism jama are treated as masculine and plural. So even when this word qaum comes, how do you have to treat it? You have to treat it as masculine and you have to treat it as plural. So qaum, the meaning is nation, we all know. Urdu में भी हमारे पास है ना word qaum. इसी तरह से second word हमारे पास क्या है? qarn. Qarn, literal meaning of qarn means 100 years, but when we translate it, we use the word generation for it. Okay, so qarn actually is singular, but obviously it refers to a group of people, or we can say it refers to the collective noun. So when we are using it in a sentence, we are going to treat it as masculine plural. And the third word, which is the ism jama, is what? Nas. Nas is people, we all know. So these three words, although when we look at them, they seem to be singular, but we are going to treat them as, how are we going to treat these words? Masculine plural. Masculine plural. Okay, because they are the collective nouns. This is one thing for today. Okay. Now we have to see that there are going to be the kind of voice. Just a minute, something. Not able to change the screen. Okay, we have to. My screen is just stuck. We have to look at the kind of plurals. Just a minute, I have to come out of this. Okay. We have to look at the kind of plurals. There are two kinds of plurals. One is called the sound plural. The sound plural is something that we have already done. The sound plural is the plural in the Muslim chart. So sound plural में क्या आ जाएगा? Muslimuna, Muslimina. The una and the ina ending, it is called the sound plural. Achha, now why is the sound plural called the sound plural? Because एक मिनट मैं ये आपको दिखाती हूँ. पीछे जाती हूँ थोड़ा सा. Here. So we have the sound. So these are actually the sound plural, the una and the ina endings. And why is it that we call them the sound plural? Because look at this word, Muslimun. So the Muslimun, meme, seen, lam, meme. Meme, seen, lam, meme. So it hasn't broken. The Muslim remains Muslim. Only what is happening, we are just attaching the ending to it. This is why they are, and even in the Muslimina, you see what is happening. We have the meme, seen, lam, and meme as it is, and it's just the combination that we are adding to it. So Muslimuna, Muslimina, Muslimina, they are, what are they called? They are called the sound plurals. Is it clear? And why is it called sound plurals? Because the order of the words which was in the singular remains the same. It's not being broken up. This is clear to everyone?
The other thing is going to be what? The broken plural. So And इसमें सिर्फ एडिशन जो चीज है ओरिजिनल वर्ड उसके आगे सिर्फ something has been added. Exactly. So this is why, because it has not been broken up. So one is the sound plural and the other is the broken plural. Since we don't see any break in the words, so that's why we call it the sound plural. और जब हम दूसरे को देखेंगे, so that one is called the broken plural. So what is a broken plural? They have given some examples of the broken. मैं एक example कराती हूँ. इसमें से साउंड प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल इंशाल्लाह आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ आ जाएगा. एक ही वर्ड के हम देखते हैं, साउंड प्लूरल भी देखते हैं और ब्रोकन प्लूरल भी देखते हैं. देखिए, एक वर्ड है काफिर. अच्छा, अब इसका अगर मैं साउंड प्लूरल बनाती हूँ तो क्या बनेगा? रफा स्टेटस में कौन बता रहा है? काफिरूना. जी, काफिरूना. ऊना हमने लगा दिया, और बिकॉज द काफ अलिफ फा एंड रॉ it's not broken, the order remains the same, so this one is the sound plural. I will write SP. सबको क्लियर हो गया ये वाली बात? अब इसी वर्ड का there is going to be a broken plural for it, which we say it's the broken plural BP. It's what उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, कुफ्फार. So now see, kaf, alif, fa and ra. The order is changed. What happens now? Kaf, fa, alif and ra. Right? ये बात सबको समझ में आ गई? What is a broken plural? Yep. जी. ठीक है. अब और examples हम देख लेते हैं. देखें, अब ये क्या है? More examples they have given us. This one is malaika too. So what is one angel called? Malik. Malakul. And then mim, lam and kaf. So then malaikatun, you can see that the order of mim, lam and kaf, in between we have some words, and mim, lam, kaf जो था वो उसका order break हो गया है. ठीक है? इसी तरह से रुsul is a plural of what? It is a plural of rasul. Rasul is singular and the plural is rusul. So अभी हम दोबारा देख रहे हैं कि इसमें there is a break. The pattern doesn't remain the same. And this one also ulama. इसके भी हम दोनों देख लेते हैं. ulama किसका singular क्या होगा? Does anyone knows? Alim. Alim, yes. So in the same way, alim can also have two kinds of plural. Alimun, हम अभी कह देते हैं इसका normal plural आएगा, which is called the sound plural. What will be the sound plural of alimun? Alimuna. Very good, alimuna. Alimina. Very good, Hassan. Okay, and then the broken plural, it is this one, ulama. Okay, is it clear to everyone? This is what we have to cover today. तो सबका sound plural और broken plural समझ आ गया? Sasa, ये जैसे like say for example like alim है या काफिर और इसका काफिरूना भी है कुफार भी. Does that mean like both can be used? Both can be used. Both can be used. Yes. Okay. फिर इसका एक बलागा पॉइंट आता है. That's very advanced level के कहाँ पर क्या यूज होगा. But for now, we just have to understand that for some words it's going to be just one plural, and for some words it's going to be two plurals. Okay. अब एक और बात जो हमें समझनी है, वो एक और बात है, वो नोट्स में आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करके याद कर लीजिए कि जो ऊना और ईना एंडिंग है वो हमेशा ह्यूमन प्लूरल्स के लिए आएगी. ठीक है? आप किसी भी वर्ड में अगर ऊना एंडिंग देखते हैं और ईना एंडिंग देखते हैं, इट विल नेवर एवर बी यूज्ड फॉर अ नॉन ह्यूमन प्लूरल. उस्ताज़ा प्लीज थोड़ा सा जोर से कहेंगे और ये रिपीट भी कर दीजिए. मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, इससे जोर से तो मैं बोल नहीं सकती. मैं आई विल रिपीट माई सेल्फ दैट. लेट मी राइट इट हियर. द
una ending, una, and the ina ending, it only comes for human plurals. ये सिर्फ ह्यूमन प्लूरल्स के लिए आएगी, ठीक है? उस्ताद जैसे मलाई कतु है, यानी ये नहीं आ सकता ऊन और ईना में, राइट? जी, मलाई कूना तो हमने नहीं किया ना, मला कूना, बल्कि वो तो नहीं हो सकता उसमें। तो ये एक्चुअली मलाइका के लिए कोई साउंड प्लूरल है ही नहीं, इट्स ओनली गोइंग टू बी ब्रोकन प्लूरल. For some words, it's just going to be a sound plural. For some words, it's just going to be a broken plural. And for some words, it's going to be both of them. So sometimes we can use sound plural, sometimes we can use the broken plural. अब जैसे रसूल है, तो रसूल के लिए हमारे पास कोई साउंड प्लूरल नहीं, we only have a broken plural. ठीक है, ये बात समझ आ गई? Okay, then now let's just move on. So now the next thing that is very important is this thing. How are they going to be treated? So when we have a broken plural, we can treat them as she, singular feminine. She means what? She means they can be treated as singular feminine. So sometimes they are going to be treated as singular feminine, and sometimes they are going to be treated as masculine and plural. मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि it gets clear to everyone. So sometimes they are treated as she. What is the meaning of treated as she? Oh, my screen disappeared. Can you hear me? जी, we can hear you. But somehow the screen has disappeared. Doesn't matter. We'll get back to it. दोबारा से इसको बंद कर देते हैं, इसको दोबारा से I'll have to open it again. Just give me 1 minute. चलेगा. Just 1 more minute, please. ओके, सो हम इसकी कह रहे थे कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं. समवेयर इन द कुरान, वील टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू इट. समवेयर इट्स गोइंग टू बी ट्रीटेड एज शी, एंड शी का मतलब क्या है? आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. इट्स गोइंग टू बी सिंगुलर एंड फेमिनिन. इसको ट्रीट करेंगे कभी. एंड समटाइम्स इट्स ट्रीटेड एज दे, एंड दे मीन्स मैस्कुलिन एंड plural. उस्ताज़ा आपने क्या कहा था कि जो साउंड प्लूरल हैं वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होते हैं, ये कहा था ना? उस्ताज़ा आपकी आवाज नहीं आ रही है. उस्ताज़ा you're not audible. The mic भी शायद चल नहीं रहा. Really, my mic is working.
जी जी, अब आपकी आवाज आई। अच्छा चलें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो पहले मैंने कहा जब हम ह्यूमन प्लूरल्स की बात करते हैं तो नंबर 1 इज गोइंग टू बी द ह्यूमंस, नंबर 2 इज गोइंग टू बी द एंजल्स, ठीक है, फरिश्तों की बात होगी, एंड दिस विल इंक्लूड नंबर 3 द जिन्स। ह्यूमन प्लूरल्स में ये सब 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, और नॉन ह्यूमन में तो ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन ह्यूमन इज इजी, ठीक है। और जब हम नॉन ह्यूमन की बात करेंगे तो नॉन ह्यूमन में इट्स ओनली गोइंग टू बी द ब्रोकन प्लूरल। कोई भी नॉन ह्यूमन चीज होगी, जैसे अब यहाँ पर हमारे पास क्या एग्जांपल आ रही है, किलाबुन। सो कलबुन मीन्स द डॉग। तो कलबुन का मैंने जो बात आपसे पहले की थी ना, कि अब इसके लिए क्या होगा, कलबूना और कलबीना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नॉन ह्यूमन है, तो इसके लिए हमेशा ब्रोकन प्लूरल ही आएगा। वो ब्रोकन प्लूरल क्या है, किलाबुन। ये बात अब समझ आ गई? जी उस्ताद। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल इन्होंने हमें क्या दी है, दूसरी एग्जाम्पल है मस्जिद। द मस्जिद इज गोइंग टू बी द सिंगुलर, एंड वी नो दैट दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो हम इसको क्या लेबल देंगे, इट इज नॉन ह्यूमन, ब्रोकन प्लूरल आएगा इसका। और इसका मस्जिदूना या मस्जिदीना नहीं आ सकता, क्योंकि ऊना और ईना एंडिंग जो है वो सिर्फ ह्यूमन के लिए यूज होगी। तो इसके लिए हमेशा एक ब्रोकन प्लूरल ही आएगा, एंड व्हाट इज द ब्रोकन प्लूरल, इट इज मसाजिद। एंड द थर्ड वन इज किताब। किताब, किताब इज अ नॉन ह्यूमन थिंग। तो अब इसका किताबूना और किताबीना आ सकता है क्या? नहीं, नहीं आ सकता, क्योंकि ये नॉन ह्यूमन है। तो इसके लिए हमेशा ब्रोकन प्लूरल ही आएगा, वो क्या है, कुतुबुन, ठीक है। And then they are saying that they, how will it be treated? It is going to be treated as she, and she means what? Singular and feminine. Now, if there is a confusion, you can quickly ask. उस्ताद सर ये जो जी, one by one, please ask one by one. पूछिए, any one of you, please. Shayateen is also a broken plural. It is a broken plural, जी। शैतान and शयातीन। उस्ताजा तो आपने शैतान आप देख रही हैं जी, but it comes in human broken plurals, no? Like it can be changed into नहीं, ये मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो जैसे अब ये एग्जांपल्स हमने यहाँ पर जो देखी हैं, उसमें मैंने आपसे क्या कहा कि ह्यूमन के लिए ब्रोकन प्लूरल भी आ सकता है और साउंड प्लूरल भी आ सकता है। कुछ वर्ड्स के लिए सिर्फ ब्रोकन प्लूरल आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन प्लूरल्स। कुछ वर्ड्स के लिए सिर्फ साउंड प्लूरल आएगा, कुछ वर्ड्स के लिए सिर्फ ब्रोकन प्लूरल आएगा, और कुछ वर्ड्स के लिए दोनों आएगा। जब हम नॉन ह्यूमन की बात करते हैं, इट्स नेवर एवर गोइंग टू बी अ साउंड प्लूरल फॉर द नॉन ह्यूमन थिंग्स, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ ब्रोकन प्लूरल। अब समझ आई बात आपको? जी। तो शैतान के लिए आपके पास ब्रोकन प्लूरल ही होगा, शयातीन उसके लिए आपके पास साउंड प्लूरल नहीं है, ठीक है। जैसे रसूल था, तो रसूल के लिए आपके पास ब्रोकन प्लूरल ही है। रसूलूना वर्ड हमने नहीं है कोई वर्ड, रसूलूना और रसूलीना, ठीक है। समझ आई बात? जी। जी। तो अच्छा, एक और चीज, जैसे अगर हम शैतान को, जैसे मैं समझी थी कि शायद हम जिन की कैटेगरी में लें, तो अगर जी जी लेंगे, जिन की कैटेगरी में ही लेंगे। जी हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब उसका साउंड प्लूरल भी हो सकता है? नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि सबका साउंड प्लूरल आए। हो सकता है, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ऊना ईना आ सकता है, लेकिन अब दिस इज अ लैंग्वेज, तो उन्होंने कहा है कि शैतानूना और शैतानीना नहीं होगा, उसमें सिर्फ वही होगा।
तो आपको समझना ये कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ साउंड प्लूरल इज ओनली व्हेन इट इज द ह्यूमन प्लूरल। जब हम इसकी बात करते हैं ह्यूमन प्लूरल की, तो वहां पर आपकी साउंड प्लूरल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर वर्ड के लिए नहीं होगा, ठीक है? ठीक जी। अच्छा, और यहाँ पर क्या होगा कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ और ब्रोकन प्लूरल्स ही होंगे, ठीक? अच्छा उस्ताजा, मैंने एक जी क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। जी ये बताइएगा कि ये जो आपने नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हैं, इसमें अगर पेयर आ जाए तो पेयर का रूल सेम वही है जो ह्यूमन पेयर के लिए? हाँ वही है, बिल्कुल सही। अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया। मुझे वो मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, ठीक है? एक चार्ट देख लेते हैं हम, पीछे हमारे पास था जो हमने पहले नहीं कवर किया था। मैं इट्स अ गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, तो वी गो बैक टू इट एंड वी सी वी हैव इट हियर। ये देखिए, अब ये कलमुन की हमारे पास एग्जाम्पल थी। सो कलमन कलमिन, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पेयर को किस तरह से करेंगे? पेयर को नॉर्मल करेंगे, कलमानी कलमैनी कलमैनी, ठीक है? एंड द प्लूरल इज गोइंग टू बी, अब क्या इसका कलमुना कलमीना कलमीना हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नॉन ह्यूमन है। इसका ब्रोकन प्लूरल ही होगा, और वो क्या है? अकलामुन अकलामन अकलामिन। समझ आ गया? जी। जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं किताब की। कौन कर रहा है इसका? जरा सा चार्ट कर ले मेरे लिए, मैं लिखती हूँ वहाँ पर, आई राइट इट फॉर अस। किताब को कौन रखेगा इस चार्ट में? उस्ताजा कहना है? यस प्लीज। किताबन। ठीक है, किताबुन रफा देना पहले आप मुझे, किताबुन। किताबन। यस, किताबिन। ठीक है, किताबुन किताबन किताबिन। सो दिस इज सिंपल। अब पेयर क्या बनेगा इसका? किताबानी। शाबाश, किताबानी। किताबैनी। ठीक है, किताबैनी। किताबीना। नहीं, बैनी एंड बैनी द सेम। किताबैनी एंड किताबैनी द सेम फॉर नसब एंड जर। ओके, अब इसका क्या बनेगा? किताबुना किताबीना बनेगा इसका। कुतुबुन। ठीक है, कूना और ईना एंडिंग यहाँ पर आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये नॉन ह्यूमन है, तो इसका ब्रोकन प्लूरल होगा। सो कुतुबुन, देन कुतुबन। कुतुबन। कुतुबिन। शाबाश, राइट, कुतुबन एंड देन कुतुबिन। ठीक है, समझ आ गया सबको ये? यस। ठीक है, इज इट क्लियर? यस उस्ताजा। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वापस नीचे जाते हैं। If there is a question or a confusion, then you can ask, and otherwise we'll do the examples. So first of all, यहाँ पे ये चीज़ नहीं गिवन थी, इसको जल्दी से रिकैप करते हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर में और पेयर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है? फिर हमने क्या बात कही कि हम कहते हैं प्लूरल की बात करते हैं। सो प्लूरल में मुझे कौन जल्दी से रिकैप करके बताएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लूरल्स वी हैव? We have two kinds of plural, sound and broken. बताइए। शाबाश, साउंड प्लूरल। व्हाट इज अ साउंड प्लूरल? सो आई विल जस्ट राइट साउंड प्लूरल, which has una, una and ina. ठीक है, ऊना और ईना जिसमें एंडिंग होगी। और साउंड प्लूरल हमारा किसके लिए यूज होगा? ओनली फॉर humans. ह्यूमंस के लिए यूज होगा, ठीक है? और ह्यूमंस के लिए क्या ब्रोकन प्लूरल यूज हो सकता है? No. ह्यूमंस के लिए ब्रोकन प्लूरल यूज हो सकता है। Oh yes, yes, yes. ह्यूमंस के लिए दोनों यूज होंगे, ठीक है? ह्यूमंस के लिए ठीक है, ये भी यूज हो सकता है, साउंड प्लूरल भी यूज हो सकता है, और ब्रोकन प्लूरल भी यूज हो सकता है। और जब हम कहेंगे कि फॉर नॉन ह्यूमंस इट्स गोइंग टू बी only broken, only sound. ओनली उस्ताजा। साउंड प्लूरल नहीं होगा, Oh और sorry. सिर्फ ब्रोकन प्लूरल होगा। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, वी जस्ट डिड इट। जी, व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ?
Ustaza, we use broken plural in some cases with human. जी हाँ, जब ह्यूमन की बात हो रही है तो उसमें आपका कहीं पर साउंड प्लूरल आएगा, कहीं पर जो है वो ब्रोकन प्लूरल आएगा और कहीं पर दोनों आएंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड दैट यू हैव. ठीक है. अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन की, लेते हैं एग्जांपल नबी. ठीक है, नबी का क्या प्लूरल होगा? अंबिया. अंबिया. अंबिया, यस, अंबिया. तो ये कौन सा प्लूरल है? साउंड है कि ब्रोकन है? ब्रोकन. इट इज अ ब्रोकन प्लूरल. क्या इसका साउंड प्लूरल आ सकता है? नबीयूना, नबीयीना, नबीयीना नहीं आ सकता. ठीक है. फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड, दिस इज हाउ द अरब हैव यूज्ड देयर लैंग्वेज. तो बात क्या होती है कि लैंग्वेज पहले आ जाती है, फिर नॉन अरब्स यानी हम जैसे लोगों के लिए वो लोग किसी ना किसी तरह से रूल्स बनाते हैं ताकि हमारे लिए ये समझना आसान हो जाए. सो दिस इज़ वाई समटाइम्स वी गेट स्टक विद द रूल कि सबके लिए एक जैसे रूल्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है ना, कि मैथ्स में क्या होता है कि एक रूल जो है वो हर जगह अप्लाई होगा, बट लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता. उन्होंने एक there was a way they were using their language and just to make it easy for people like us, तो फिर उल्मा ने क्या किया कि वो set of rules बना दिए ताकि हम उनको याद कर लें और हमें समझ में आने लगे कुछ बातें. ठीक है, समझ आई बात? तो ह्यूमंस के लिए दोनों यूज़ हो सकते हैं, लेकिन नॉन ह्यूमंस के लिए जो है वो ऊना ईना साउंड प्लूरल नहीं यूज़ होगा. उसके लिए सिर्फ क्या यूज़ होगा? ब्रोकन प्लूरल यूज़ होगा. ठीक है जी उस्ताद. दिस इज़ यही बस जो है ना वो आज का टॉपिक था. अभी हम थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए. अच्छा, फिर एक और चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी से इसको भी रिव्यू कर लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले, कि कभी कभार क्या होता है कि जब हम ब्रोकन प्लूरल की बात कर रहे हैं ना, तो जब ऊना और ईना एंडिंग वाला होगा तो उसमें तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसको तो हम मैस्कुलिन प्लूरल ही यूज़ करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. जब ऐसे वाले वर्ड आ रहे हैं मलाइकतु, रुसुल, उलमाउ, so depending upon their usage, sometimes they are going to be treated as a she, means singular feminine, and sometimes they are going to be treated as they, means masculine plural. Masculine plural actually तो ये यही है ना, ये क्या words है? masculine plural words ही हैं. So sometimes इनको जिस तरह से ये हैं इसी तरह treat किया जाएगा, and sometimes they are going to treat them as a she, like a singular feminine. लेकिन जब ब्रोकन प्लूरल की बात आएगी तो किलाबुन को हम एज अ प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किलाबुन को हम एज अ सिंगुलर फेमिनिन यूज़ करेंगे. ठीक है. मसाजिदू को हम सिंगुलर फेमिनिन यूज़ करेंगे, इसको एज अ प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे. और कुतुबुन को हम कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर फेमिनिन. हालांकि ये प्लूरल है, बट द वे ऑफ ट्रीटिंग इट इन अ सेंटेंस इज गोइंग टू बी अ सिंगुलर फेमिनिन वे ऑफ ट्रीटिंग. ठीक है. अभी देख लेते हैं, फिर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ वर्ड्स आप देख रहे हैं कि इनकी ये 6 वर्ड्स ऑन द स्क्रीन. नाउ मलाइकतु, क्या मलाइकतु क्यों है? मलाइकतुन क्यों नहीं है? Because it is light. Okay, it's light. And anyone else? Broken plural. फ्लेक्सिबिलिटी से कुछ. बिल्कुल जी, दिस इज पार्टली फ्लेक्सिबल. जब आप इस तरह से एक देखिए ना यहाँ पे मलाइकतु, तो इसका रफा मलाइकतु, नसब क्या होगा? मलाइकता, जर क्या होगा? मलाइकता. अब ये तो नॉर्मल है, तो इसको वी विल हैव 3 डिफरेंट स्टेटस फॉर इट. रुसुलुन, रुसुलन, रुसुलिन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने तनवीन देख ली. सो दिस वर्ड, बिकॉज वी सी वन दम्मा देयर, it's going to be treated as partly flexible. Because we see a tanween at the end of the word, we are going to treat it as fully flexible. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जी जी. अब उलमाउ को कैसे ट्रीट करेंगे? पार्टली फ्लेक्सिबल और फुली फ्लेक्सिबल? पार्टली फ्लेक्सिबल. पार्टली फ्लेक्सिबल. आप बताइए इसका रफा, नसब और जर. उलमाउ, उलमा आ. अल्हम्दुलिल्लाह. अब देखिए नेक्स्ट वर्ड वी हैव किलाबुन.
How are we going to treat it? Fully flexible. Fully flexible. अब बताइए इसका what is going to be the rafa nasab and jar for it? Kilabun, kilaban, kilabin. Shabash, that's right. Okay, next word is masajidu. Who is telling me? एक मिनट ज़रा सा, आज बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही खामोश हैं because I am not calling out the names today. साथ आप बताइए. Partly flexible. शाबाश. रफा नसब और जर बताइए इसका. मसाजिदु, मसाजिदा, मसाजिदा. Very good. अच्छा, अब इसका बताइए. Who is telling this one? मरियम, आप बताइए. Fully flexible. Is it Mariam? Yes. Okay. What is going to be the rafa nasab and jar for it? Kitabun, kitaban, kitabin. Excellent, very good, alhamdulillah. Next word मैं आपको देती हूँ. अभी हमने इसके बारे में बात की, अंबिया. How are we going to treat it? Sister Rashta, आप बताइए. Let me write the word for us. अंबिया. Is it partly flexible? जी, रफा नसब एंड जर बताइए. अंबिया उ, अंबिया आ. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस इज क्लियर. ये वाली सबको बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई. अब एक्सरसाइज करके उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज इट अ साउंड प्लूरल व्हाट. ओके, द मीनिंग्स आर गिवन टू अस. तो इफ द मीनिंग्स विल हेल्प आउट कि कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे. और जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को इसका सिंगुलर बताती जाऊँगी. आई विल राइट इट देयर ऑन द स्क्रीन. सो थोड़ी सी वोकैबुलरी भी इंशाल्लाह हमारी बिल्डअप होती जाएगी. चले, मुकज़्ज़िबीना. The first one is done for us, so it is going to be treated as plural. ठीक है, plural and masculine. They haven't said it, but we treat it as plural and masculine because why are we treating this as plural masculine? Reason कौन बताएगा मुझे? उस्ताज़ा, काज़िब का तो प्लूरल है, ईना हो गया. Because of sound. बिल्कुल जी, because of the ईना एंडिंग. ऊना एंड ईना एंडिंग में हमने क्या कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लिए होगी? ये ह्यूमंस के लिए होगी. तो इसलिए हम इसको प्लूरल और मैस्कुलिन ट्रीट करेंगे. सिस्टर मायरा, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं जवाब दे रही थी कि ईना की वजह से हमने इसको मैस्कुलिन प्लूरल दिया. आपके सवाल का जवाब. ठीक है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. और नेक्स्ट वन हमारे पास ये है आयातुन. ओके, आयातुन को कैसे ट्रीट करेंगे? दिस इज मिराकुलस साइंस. हमें पता है ना आयातुन. इसका सिंगुलर कौन बताएगा? कैन आई? जी प्लीज बताएं. आयत. यस, आया. सो आई विल राइट हियर. यस, आयातुन. सो कैसे लिखेंगे? Sometimes it just what is happening to this? See, the singular was ayatun and the plural was ayatun. पेन को यूज़ करने की वजह से आई डोंट नो व्हाई कि ये लैपटॉप मेरा हैंग हो रहा है. बट विदाउट द पेन वी कैन नॉट वर्क. कभी कभी पेन जो है वो प्रॉपरली सही चल रहा है और कभी कभी इसकी वजह से पूरा हैंग हो रहा है. चलिए, अब मैं ये लिख नहीं रही. जस्ट वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज आयतुन. And ayatun is going to be treated as singular and feminine. अच्छा, अब नंबर 2 यहाँ से देख लेते हैं. नंबर 2 is जिबाल. जिबाल means the mountains. इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इसको? She, feminine. Singular and right one. Singular and feminine. Okay.
What is the singular of jibal? Jabal. Jabalun, yes. Alhamdulillah, it's jabalun. जबलुन। आप लोगों को वैसे जो कुरान रेगुलरली पढ़ता है उनको ये वर्ड्स आते हैं वैसे ही। अच्छा, आपने सिंगुलर क्यों लिखा है? जबाल के आगे हमने सिंगुलर क्यों लिखा? हाँ, इसको ट्रीट कैसे करेंगे? दिस इज व्हाट, एक मिनट, शायद आपको ये नजर नहीं आ रहा मेट का, इसकी वजह से। ये देखें, दे आर सेइंग कि हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट इट, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट इट एज फेमिनिन, सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट इट एज प्लूरल, यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एज सिंगुलर फेमिनिन। तो हमने क्या कहा था कि नॉन ह्यूमन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसको हम शी ट्रीट करते हैं ना। अच्छा, सही। ये वाली बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पर तो ये प्लूरल था, ये तो ह्यूमन प्लूरल था, तो ह्यूमन प्लूरल को हम एज दे ट्रीट करेंगे। चले ऐसा करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो ही, दे और शी लिख लेते हैं, इसको हम ट्रीट करेंगे। चलिए नहीं, वो ठीक है, वो चीज मैं भूल गई थी आपको। हाँ, कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसको हम ट्रीट करेंगे सिंगुलर एंड इसको फेमिनिन ट्रीट करेंगे, और इसका सिंगुलर जस्ट फॉर आवर वोकैबुलरी पर्पस मैंने कहा इसका जो सिंगुलर होगा वो जबलुन होगा। अच्छा, वुजूहुन, वुजूहुन इज फेसेस। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगुलर एंड फेमिनाइन। सिंगुलर एंड फेमिनिन यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि व्हाई शुड बी ट्रीटेड एज सिंगुलर फेमिनिन? बिकॉज इट इज नॉन ह्यूमन। जी, नॉन ह्यूमन है, इसलिए इसको हम सिंगुलर फेमिनिन ही यूज करेंगे। इसको हम मैस्कुलिन और प्लूरल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। निसा, निसा मीन्स वुमन। सिंगुलर। अच्छा, हाँ, सिंगुलर मैस्कुलिन, निसा मीन्स वुमन। Ustaza, nisa is a human, we'll use it as human. ठीक है, दिस इज वेरी गुड, दिस इज द ह्यूमन प्लूरल, ये आपका ह्यूमन प्लूरल है वुमन, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि ये क्योंकि ब्रोकन प्लूरल है तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देयर आर गोइंग टू बी टू वेज ऑफ ट्रीटिंग इट, आइदर यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एज सिंगुलर फेमिनिन और यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एज सिंगुलर, सॉरी, प्लूरल और फेमिनिन, क्योंकि ये प्लूरल फेमिनिन वर्ड होगा ना। समझ में आए? अब जब आप इसको एज अ दे ट्रीट करेंगी इसको, तो दे फॉर द वुमन क्या होगा? प्लूरल एंड फेमिनिन। बात समझ में आई? जी। अच्छा, इसका सिंगुलर कौन बताएगा? ये इज अ डिफिकल्ट वर्ड, तो ये जरा इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। सो व्हाट इज द सिंगुलर फॉर इट? इम्राअतुन, राइट। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये डिफरेंट वर्ड है, बट द सिंगुलर फॉर इट इज इम्राअतुन। वन वुमन इज कॉल्ड इम्राअतुन, राअतुन, एंड द प्लूरल इज निसाअ। इसका पेयर क्या होगा? इम्राअतानी, इम्राअतैनी, देन निसाउ, निसाआ, निसाआ। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं तनवीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फतहा है, तो इस फतहा से क्या पता चला? पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है, ठीक है जी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वर्ड, एक मिनट में लेट मी कॉल आउट द नेम्स, क्योंकि कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं और कुछ लोगों की बिल्कुल आज आवाज़ें नहीं आ रही। हु इज़ बिनते हसन टुडे? Who has joined us? I don't know. Someone has joined with a new name, so I will not be able to recognize who you are. मुबर्रा, आप बताइए नेक्स्ट वन। नंबर 5 बताइए। बिहारू। जी, सिंगुलर एंड सिंगुलर। सिंगुलर एंड सिंगुलर फेमिनिन। फेमिनिन, हाँ, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? वी गोइंग टू ट्रीट इट एज अ शी and it's going to be singular feminine. And why are we treating as singular feminine? Because it is a non-human. Non-human plural, ठीक है। इसका singular word कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी जी बताइए। बाहर। बाहरुन, yes. Sorry, fatha. Let's get okay, now number 6. मुताहिर, आप बताइए नंबर 6।
This is a human plural. जी ह्यूमन प्लूरल, वेरी गुड। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसको दे ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको दे ट्रीट करेंगे मींस वी विल ट्रीट इट एज मैस्कुलिन प्लूरल। ओके, व्हाट इज गोइंग टू बी द सिंगुलर फॉर इट? मुताहिर इसका सिंगुलर फिगर आउट करें। मुतनाफिस। यस, मुतनाफिसुन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नंबर 7 कौन कर रहा है? सिस्टर नौरीन आप कर लीजिए। नंबर 7 जी, ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे? शी, सिंगुलर शी करेंगे जी, शी ट्रीट करेंगे, सिंगुलर फेमिनिन। और इसका वो बताइए सिंगुलर वर्ड क्या बनेगा कबूर का? कबर। हाँ, हम सबको पता है कबर है, सो दैट इज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट वन कौन बताएगा? या सिस्टर साइमा आप बताइए। अलबैयनतु नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। अलबैयनतु, अच्छा अब आप इसका मीनिंग देखें, क्लियर प्रूफ। तो सिंगुलर फेमिनिन, इसको सिंगुलर फेमिनिन यूज करेंगे, बट दिस इज नॉट इट्स नॉट अ प्लूरल वर्ड, ये जस्ट सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। जैसे क्लियर प्रूफ। इसका प्लूरल अगर हम बनाते ना तो वो बय्यिनातुन, बय्यिनातिन, बय्यिनातिन बनता। जैसे कि आयात है ना, आया का जैसे आयातुन, आयातिन, आयातिन है, ऑन द सेम पैटर्न इसका प्लूरल बनेगा बय्यिनातुन, बय्यिनातिन, बय्यिनातिन। मगर ये वर्ड जो है दिस इज अ सिंगुलर वर्ड, लेट अस राइट, सो इट्स क्लियर टू एवरीवन, इट्स नॉट अ प्लूरल। सो इसको तो हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे। और इसको हमने फेमिनिन किस वजह से ट्रीट किया? मैस्कुलिन क्यों ट्रीट नहीं किया? नॉन ह्यूमन है, सॉरी वर्ब्स क्योंकि द सिंगुलर मतलब इट्स नॉट इवन अ प्लूरल। नो, बिकॉज ऑफ द ता इन द एंड। राउंड ता हमने कहा था, शायद आप उस वक्त थी हमारे साथ या नहीं थी। जैसे मुस्लिमतुन, तो wherever you see around ta, that indicates, and it's a singular word, so this round ta at the end will indicate that it is a feminine word. Okay. चले ये वाला करते हैं, नंबर 10। सिस्टर रेहाब आप कीजिए। बशरुन, masculine plural, a person। ट्रांसलेशन देखे ना बेटा, a person, so it's human, it is human but it's a person, एक आदमी। तो एक आदमी को आप कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगुलर feminine, नो, पर्सन आदमी, सिंगुलर मैस्कुलिन। okay, क्योंकि इस ट्रांसलेशन देखिए ना, व्हाट इज द ट्रांसलेशन, सो जस्ट टू ट्रिक अस दे हैव गिवन सम अदर वर्ड्स आल्सो, सो दैट वी आर एबल टू नो कि इस वर्ड को कैसे ट्रीट करना है। अ पर्सन इज नॉट फेमिनिन, अ पर्सन इज अ मैस्कुलिन। एक आदमी तो मैस्कुलिन है ना, तो इसको ट्रीट इट, वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज अ ही ट्रीट करेंगे ना इसको हम। समझ आया? जी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से देखते हैं, अभी किसकी टर्न नहीं आई? जी मेरी टर्न नहीं आई। जी, आप कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए सिस्टर माहिरा, नंबर 11 जहीम। जी, ये अल जहीमा नॉन ह्यूमन है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज सिंगुलर फेमिनिन। जी, इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और फैमिली देखें, शायद ना ये चीज़ अभी हमने की नहीं है, इसको हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अभी के लिए इसको हम सिंगुलर फेमिनिन कह देते हैं। और इट्स नॉट अ प्लूरल वर्ड, इट इज़ जस्ट अ सिंगुलर वर्ड। सम वर्ड्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। सो जहीम को हम हमेशा सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे। अगर अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो ये वाली बात जो है वो नेक्स्ट लेसन में आएगी, जब हम मैस्कुलिन फेमिनिन पे बात करेंगे। तो ये जहीम को हम फेमिनिन क्यों ले रहे हैं, मैस्कुलिन क्यों नहीं ले रहे। तो नंबर 12 उस्ताजा कहना है। जी जी, किस आप कौन है?
मरियम। ओके मरियम, तो बाकी सबकी टर्न आ गई? मेरी तो नहीं। किसकी नहीं आई टर्न? साद। अच्छा साद आप कीजिए। आई थिंक आपकी सबसे पहले नहीं आई थी टर्न। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। नेक्स्ट वन कीजिए अल्फील। सिंगुलर फेमिनिन। एलिफेंट को फेमिनिन क्यों नहीं बोलेंगे बताएं? सिंगुलर तो है बट ये तो एलिफेंट है ना। एलिफेंट ही है कि शी? इट्स नॉन ह्यूमन। हाँ तो नॉन ह्यूमन है लेकिन प्लूरल नहीं है बेटा, दिस इज सिंगुलर। एलिफेंट, एलिफेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? एलिफेंट को तो एज अ ही ट्रीट करेंगे, जैसे इट भी ट्रीट कर सकते हैं बट अभी के लिए हम क्या कहेंगे कि हम इसको, क्योंकि ये एलिफेंट है, इट्स नॉट अ फीमेल एलिफेंट, इट्स अ मेल एलिफेंट, तो इसको सिंगुलर। मैं इसको ज़्यादा एलिफेंट को किस तरह से ट्रीट करते हैं नॉर्मली उर्दू में भी हम कैसे ट्रीट करते हैं? हाथी को हम क्या ट्रीट करते हैं? ही ट्रीट करते हैं ना, द सेम वे। Look at the translation of the word. All words are not plurals. जब मैं ज़्यादा इससे पेन से नहीं लिखूंगी फिर दोबारा से स्क्रीन गायब हो जाएगी। Sometimes it's acting up today. चलिए अल-अर्द। किसकी टर्न है? अल-अर्द बताइए। उस्ताजा, it's my turn, I think so. Okay, go ahead. Al-Ard. It's non-human broken plural. It's not plural. Earth क्या plural है? Earth is singular. लेकिन सारे words plural नहीं हैं. All words are not plural. आप इसका translation देखिए, the earth. So earth is singular. It's not earths. Earths तो it's nothing as earths. ठीक है? Okay, sir. Yes. Okay, so we just for now we will say अब feel को भी हम कहते हैं कि इसके लिए हम singular रखते और it's just a singular word. इसके लिए भी हम कह रहे हैं कि this is just a singular word. जहीम again is just a singular word. So उन्होंने सारे plural words exercise में हमें नहीं दिए, कुछ उस्ताजा अगर words हैं। इन्हीं का अगर आप साथ साथ हमें प्लूरल भी बताते जाएं कि हम किस तरह इनका प्लूरल बनाएंगे, नंबर 11, 12, 13 का प्लीज। जहीम का तो खैर वो कोई होगा ही नहीं, जहन्नुम तो एक ही है। एंड सम वर्ड्स आर डिफ़िकल्ट, तो इसलिए मैंने इंटेंशनली इस वक्त इनको छोड़ दिया कि बहुत ज़्यादा शायद किसी के लिए हो जाएगा। अच्छा, जिनका कोई प्लूरल नहीं आएगा, इसका कोई प्लूरल नहीं आएगा। जहीम इज जस्ट जहन्नुम के कोई प्लूरल नहीं, अर्थ का भी कोई प्लूरल नहीं, ठीक है। हम इंग्लिश में भी अर्थ्स तो नहीं कहते, इट्स जस्ट गोइंग टू बी नो प्लूरल फॉर इट। अच्छा, नंबर 14 देख लेते हैं, आमाल। आज हमारे साथ मुंतहा नहीं है क्या? She is not feeling well. Then she must send me a message if she is not attending the class. Okay, doesn't matter. Sister Rashta, आप बताइए। Amalun is plural. ठीक है, अब ये प्लूरल है, अब हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे ट्रीट करें। जी बताइए। It's non-human, so it's going to be treated as she. She, जी, it's going to be treated as a she, and singular feminine को ट्रीट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका सिंगुलर क्या आएगा? कॉमन वर्ड अमल। अमलुन, यस अमलुन। अच्छा भाई, ये मेरा पेन नहीं वर्क कर रहा, लेट्स लीव इट। ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मलाइका तो एंजल्स, एंजल्स को कैसे ट्रीट करेंगे? मिनाहिल आप बता दीजिए। मलाइका तो सिंगुलर फेमिनाइन। अच्छा, एंड सिंगुलर एंड फेमिनाइन। अच्छा, देर आर 2 ways ऑफ ट्रीटिंग इट, रिमेंबर। हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है और ये ह्यूमन भी है, सो आइदर वी कैन ट्रीट इट एज अ शी और वी कैन ऑल्सो ट्रीट इट एज अ दे, so like plural feminine as well. सो सिंगुलर फेमिनिन यूज कर सकते हैं या प्लूरल मैस्कुलिन यूज करते हैं? Masculine.
masculine. Singular feminine, ठीक है, और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं as they, and they is plural masculine. उस्ताजा ये जो आमालुन है ये अभी बात हुई थी कि नॉन ह्यूमन है, और जो नाइन्थ वाला है आयातुन वो भी उसको हमने सिंगुलर फेमिनाइन किया, लेकिन आमालुन को हमने प्लूरल क्यों किया? It will be treated प्लूरल as तो नहीं किया, सिंगुलर फेमिनिन ही किया है हमने इसको, अभी तो सिस्टर आशा ने बताया. I thought she said plural. it maybe is I misheard. Plural. Amalun itself is a broken plural. It's treated as a singular feminine. Right, she said it correctly. मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही बताया है. Okay. और last word. Okay. उस्ताजा मेरी बारी रहती है. जी आप कर लीजिए. Who are you? साद. अच्छा ठीक है, साद आप कीजिए. जी, it's a human and it's plural. अच्छा, सबसे पहले आप देखें इसका मीनिंग क्या है. Two men. Two men, yes. ठीक है, अब ये two men है, तो इसको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे? नहीं ट्रीट करेंगे, ठीक है ना. इसको कैसे ट्रीट करेंगे? टू मैन को कैसे ट्रीट करेंगे? ब्रोकन प्लूरल. नो बेटा, ये टू मैन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको एज अ पेयर ट्रीट करेंगे, मैस्कुलिन पेयर. इसको दोबारा से लिखती हूँ ताकि क्लियर हो जाए. ये है टू मैन, दो आदमी. तो इसको हमारे पास क्या होता है? सिंगुलर होता है, पेयर होता है और प्लूरल होता है. तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं कर सकते, हम इसको प्लूरल भी ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अरबिक में हमने कहा कि अरबिक में हमने कहा प्लूरल मीन्स 3 और मोर देन 3. तो यहाँ 2 की बात हो रही है, तो इट्स गोइंग टू बी पेयर, एंड बिकॉज इट इज मैन सो वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज पेयर एंड मैस्कुलिन. ठीक है. Okay, I think this is all. Okay, उस्ताजा. Okay, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. मैं एक और एक्सरसाइज ढूंढूंगी इंशाल्लाह, आप लोगों को दूंगी. तो देखिए ट्रांसलेशन को देखिए, अगर आपको अरबिक वर्ड्स नहीं आ रहे, डेफिनेटली अभी तो किसी को भी अरबिक वर्ड्स नहीं आ रहे, बट द ट्रांसलेशन इज गिवन सो दैट हम इस ट्रांसलेशन को देखें और फिर उसको बताएं कि किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे. तो जल्दी से, इट्स ऑलरेडी 34. अगर किसी को जाना है तो आप लोग चले जाएं, डजंट मैटर, फिर आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. एक रिक्वेस्ट थी. जी मैं ये कह रही थी कि मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बाकी सब यंग लोग हैं तो they've got fresher minds, मगर जैसे मैं अपना सोची थी कि मैं अगर आज ही मैंने लास्ट वीक का पूरा 1 घंटे का लेसन मैंने दोबारा पूरा देखा, तो then only I was able to answer your questions, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी स्पीड में जा रहे हैं कि और इतना मैं असल में इतना टाइम रिवाइज करने को दे नहीं पा रही, तो मुझे काफी मुश्किल लग रहा है. मैं ये एक सजेस्ट करी थी कि अगर आप बेशक एक छोटा सा हमारा एक 5 मिनट का कुछ रिवीजन टेस्ट ले लें, जिसमें से क्लास नंबर 1 का अगर और बहुत छोटा छोटा सा आप हमें दें, मगर हम उतना रिवाइज करके हैं तो हमारा पिछला रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि हम जिस स्पीड से जा रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि हम पिछला हम भूलते जाएं. अच्छा, मैंने ये सोचा था कि जब इसम स्टडीज कंप्लीट होगा तो मैं टेस्ट लूंगी. टेस्ट इज इम्पोर्टेंट, आई नो. तो अगर एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो फिर भी मुश्किल हो जाएगा. अगर हम थोड़ा सा करके करेंगे. चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा प्लान करती हूँ. जस्ट गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, फिर मैं जो है वो कुछ 2-3 लेसन्स का इनिशिएट करूँगी. और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस वक्त पूछ लीजिए. अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना और अगर जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम अप हो गया, तो आप जा सकते हैं. बस हम एक छोटी सी बात करेंगे. जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो मैंने आपसे कहा था कि व्हाट डू यू थिंक, हमें अगर अपनी ज़िंदगी में वी वांट टू बिकम सक्सेसफुल, ज़िंदगी में पास होना है, तो फिर हमें क्या करना होगा. सो इफ एनीवन हैज़ थॉट अपॉन इट तो प्लीज़ शेयर कीजिए. जी उस्ताज़ा. जी मिनाहिल, आप 1 मिनट रुक जाइए. अगर किसी और को कुछ शेयर करना है तो उनको कहने दीजिए, फिर हाँ आपकी बारी. ठीक है. ओके. मे बी समवन एल्स हैज़ थॉट अबाउट इट. Anyone else wants to share something? कि आपको what are the main subjects, main things कि जिसमें हमें पास होना ही पड़ेगा, then only we will be able to be successful in life. Ustaza, can I tell? जी बताइए. I think the 5 pillars of Islam and doing good deeds, and which Allah subhanahu wa ta'ala said,
ये तो हमने उस दिन And डिस्कस कर लिया था ना ऑलरेडी, समथिंग न्यू। अगर आपने कोई सुन आया आपके पास आ गई हो तो फिर आप मुझे बताइए। like sunnat is Okay, that is fine. At least you thought about it. Jazakallah khair. So for now, Minahi, what do you want to share with us? Ustaza, I want to share the message behind Surah Asr. जी बताइए। If I may start. अच्छा, सूर्य असर हमारे पास कुरान में एक बहुत छोटी सी सूरत है, लेकिन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इट स्टार्ट्स विद वल असर, कसम है वक्त की। तो लाइक अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, ही इज़ द क्रिएटर, और वो वक्त की कसम खा रहे हैं। इट मीन्स हाउ इम्पॉर्टेंट द टाइम इज़, जिसको हम बहुत ईजीली वेस्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट वर्ड में हमें वक्त की कसम खा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है वक्त। देन द सेकेंड, इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, दिस इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर अस। वो कह रहे हैं कि बेशक इंसान खसारे में है। खसारा मीन्स लॉस, कि हम सब लॉस में। और ये एक बहुत बड़ी बात है। वो वक्त की कसम खाते हुए हमें कह रहे हैं कि आप लोग सारे लॉस में। देन देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस। फिर वो कहते हैं एक्सेप्ट दोज। इसमें हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, और ये एक्चुअली हमारा वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, हमें इस तरह रहना चाहिए। नंबर 1, दोज हु बिलीव, आमनु व आमिलु स्वालिहाती, दोज हु डू गुड डीड्स, नेक अमाल करते हैं। व तवासौ बिल हक़ की, और दूसरों को हक़ की तरफ तलकीन करते हैं। अब उस्ताज़ा ने हमसे एक दफ़ा पहले पूछा था कि हमें जैसे इस्लाम में फ़ोर्स नहीं किया जाता, तो हमें एक दूसरे को मतलब कहना चाहिए कि ये करो वो करो। तो हमने मतलब इस तरह डिफरेंट जवाब दिए थे। उसका आंसर ये बनता है कि जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाते हो तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप गाइड करो आउट ऑफ लव। आपको किसी से इतना ज़्यादा प्यार है तो आप उसको क्यों नहीं गाइड करोगे कि यार ये गलत है ये सही है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इंसान की, जो खुद तो अच्छे रास्ते पे है, जो उसने सीखा, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसके पास नॉलेज आई है, उसने वो दूसरों को भी पहुंचाई है आउट ऑफ लव। उसको अपने मुसलमान बहन भाइयों से बहुत प्यार है, और उसने कहा कि यार देखो ये सही रास्ता है, आप इस वक्त इस पर आ जाओ। तो वतवासो बिल हक़ी वतवासो बिस सब्र, और वो तलकीन करता है सब्र की। अच्छा, सब्र इज़ नॉट कि किसी की डेथ हुई है और आप उसको कहो कि नहीं यार रोना नहीं है, सब्र करो सब्र करो। इट्स नॉट सब्र, ठीक है, आप उसको रोने दो, इट्स टोटली नेचुरल। लेकिन जब हम कुछ होता है, कोई ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से कोई आपके ऊपर मुश्किल आती है और आप उसमें बिलीव करते हो कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है तो इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, दैट इज़ सब्र। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपकी हैं, ईमान, गुड डीड्स, दूसरों को हक़ की तरफ तलकीन और सब्र की तरफ तलकीन, देन यू कैन लिव अ गुड लाइफ। दैट्स इट। राइट। तो इस तरह से हम इसको लेबल करते हैं कि ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। अगर हमें पास होना है तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ईमान की ज़रूरत है, ठीक है। सेकंड चीज़ हमें किसकी ज़रूरत है? हमें अमले सौले नेक आमाल की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों चीज़ों के बारे में हम somehow we are conscious about it। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, फिर हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं हर इंसान, हर मुसलमान के कुछ ना कुछ अपने कैपेसिटी में वो नेक अमाल भी कर ले। लेकिन जो बाकी 2 बातें ना, हमें कोई पिक एंड चूज़ का ऑप्शन नहीं दिया अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कि आप 2 कर लें या 1 कर लें और बाकी 2 को छोड़ दें। नो, यहाँ पे ये अतफ जो यूज़ हो रहा है ना कि ये वाव है, मीन्स एंड, मीन्स all 4 of them are equally important। तो तवासी बिल हक़ करना, लाइक गिव, नसीहत करना एक दूसरे को हक़ की, इसके बारे में डिटेल में हम हर रोज़ एक करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि ये हैं क्या 4 चीज़ें। सो दीज आर द 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन लाइफ। अगर हम इसमें पास होंगे ना तो ही हम ज़िंदगी के एग्ज़ाम में पास होंगे। अभी तो बात ये है कि मेजॉरिटी हम लोगों को पता ही नहीं है कि कंपल्सरी सब्जेक्ट ज़िंदगी के हैं क्या। जब यही नहीं पता होंगे तो फिर हम इसमें मेहनत कैसे करेंगे और पास होने की कोशिश कैसे करेंगे। तो एक छोटी सी, माशाल्लाह मिनाहे ने बहुत अच्छा समझाया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला इनकी ज़बान में और तासीर दे। देखिए यहाँ पर जो कसम खाई जा रही है ना,
हाँ, कसम अल्लाह सुभाना, हम लोग आपस में कसम खाते हैं, किस लिए कसम खाते हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर यकीन नहीं कर रहा। सो अल्लाह सुभाना व तआला का उसलूब ये है कि जहाँ पे अल्लाह सुभाना व तआला कुरान पाक में कसम खा रहे होते हैं तो वो इसलिए खा रहे होते हैं ताकि हमारी अटेंशन जो है ना, अगर हम अटेंशन से पढ़ भी रहे हैं तो उससे ज़्यादा अटेंशन से देखें कि आगे जो बात आ रही है इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इसीलिए अल्लाह सुभाना व तआला ने कसम खाई। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये कहा गया अल इंसान मीन्स ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन लॉस, और अरबी ज़बान में ये जो खसर होता है, ये वर्ड यूज़ होता है एक ऐसे लॉस के लिए, देयर इज़ नो मेकअप एग्ज़ाम फॉर इट। ज़िंदगी में क्या होता है कि हमने एक एग्ज़ाम दे दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट में हम पास नहीं हुए, फेल हो गए, सो मेकअप एग्ज़ाम होगा या हम उसको दोबारा से दे देंगे, फिर हम उसका रीडू कर लेंगे, मगर इस ज़िंदगी के एग्ज़ाम का कोई रीडू नहीं है। सो खसर का मतलब है इट इज़ अ लॉस, कि अब यू विल नॉट बी एबल टू मेक अप फॉर इट। अगर आपको पहली दफ़ा जो मौका था उसका आपने फ़ायदा नहीं उठाया, सो देयर इज़ नो कमिंग बैक आफ्टर इट। एंड देन उसके बाद फिर ये 4 बातें जो हैं, कौन लोग हैं, सारे लोग हैं वो क्या खसारे में हैं। फिर ये एक्सेप्शन जो कर ली हमने, इन 4 बातों के बारे में बात कर ली, दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। वो लोग जो ईमान लाए, द पीपल हु बिलीव वामिलु सॉलिहात and they did the righteous deeds, watawasaw bil haqqi, and they enjoined each other, or they tell each other to do the righteous, the truth। अब हक के बारे में भी इंशाल्लाह मैं बाद में बात करूँगी। and then they, जब आप लोगों को सच्चाई की तलकीन करते हैं तो क्या होता है कि आपके ऊपर लोग मजालिम करते हैं या आपके साथ उनका रवैया जो है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर लास्ट बात क्या है कि उसमें भी आपको पेशेंट रहना है एंड यू हैव टू कंटिन्यू ऑन योर पाथ। तो ये 4 बातें हैं। अब नेक्स्ट सेशन से ये करेंगे कि एक दिन ईमान के बारे में बात करेंगे, फिर नंबर 2 अमल सौले के बारे में बात करेंगे, फिर तवासी बिल हक़ के बारे में बात करेंगे, और फिर तवासी बिल सब्र के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला डिटेल में। आप लोग ये कीजिएगा कि किसी की भी तफसीर जो आप लोगों के पास हो उसको पढ़ लीजिए सूरह असर के बारे में, या फिर आप जो है वो यूट्यूब से उस्ताद नुमान को सुनना चाहते हैं, डॉक्टर इसरार को सुनना चाहते हैं, डॉक्टर फरहत हाशमी को, जिसको दिल चाहे तफसीर पढ़ लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये पहले से पता चल जाए, फिर हम मिलकर इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। लास्ट थिंग फॉर द डेज, ये सूरतुल असर में जो बात हो रही है ना, दिस इज़ द बेयर मिनिमम थिंग, ये सिर्फ पास होने का क्राइटेरिया है। तो ज़िंदगी में हम क्या कहते हैं, हमारे बच्चे जब एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि बेटा सिर्फ पास हो जाना 45 मार्क्स लेकर, ये एक्सपेक्टेशंस तो नहीं होती ना हमारी अपनी बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या जो आप में से स्टूडेंट्स हैं, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया यू आर गोइंग टू सेट फॉर योरसेल्फ, कि मुझे तो A* ही चाहिए या मुझे A+ ही चाहिए, इज़न्ट इट? यस एग्जैक्टली। सो इंशाल्लाह जब सूरतुल असर हम कंप्लीट करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट वो कौन से लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक A* स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी को पता हो तो फिर मुझे बताइएगा वो कौन सी आयत है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने A* लोगों के बारे में बात की है। ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह हम सेशन एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।